Hello students, today we will read chapter 2 The Friendly Mongoose of book A Pact with the Sun. I hope you like the video. If you like the video then press the like button and press subscribe button for my next videos about your class. So let's begin. A farmer, his wife and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक किसान और एक बीवी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर में एक मंगूस भी थे। छोटे मंगूस माने नेवला, जो अपने एक छोटे से मंगूस के साथ भी रहते थे। वो सोचते थे कि जो मंगूस जब बड़े होंगे तो वो हमारे बेटे के बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन एक किसान और बीवी अपने वही दोनों किसान और बीवी अपना घर छोड़ के जा रहे थे और अपने बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के चले गए. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet. The farmer said to his wife, one day when our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. एक बार एक किसान अपनी वाइफ के साथ अपने छोटे से गांव में एक रहता था और उसके एक छोटा सा बेटा भी था। वो उसे अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड। एक दिन उस किसान ने सोचा कि हमारा भी एक पेट होना चाहिए, हमारा भी मतलब एक पालतू जानवर होना चाहिए। तो उसकी बीवी ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कि वो हम जब बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे उसका फ्रेंड भी बन जाएगा हमारे बेटे का। तो फिर उसकी बीवी को ये आइडिया पसंद आ गया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम वही किसान जो था शाम को एक दिन वो ले आया, एक छोटा सा नेवला ले आया अपने घर पे और वो उसका बेबी mongoose थे, मतलब बहुत छोटा नेवला था। उसकी बीवी ने कहा कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. बोथ द बेबी माने दोनों बच्चे और नेवला थोड़े थोड़े बड़े, लेकिन 5 से 6 महीने में नेवला जो था वो अपने रियल साइज में आ गया, लेकिन जो उनका बच्चा था वो अभी भी रोता था और अपने झूले में ही पड़ा रहता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking a basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. एक दिन वो किसान की बीवी जो थी वो बाजार जा रही थी अपने बेबी को खाना खिला के और फिर उन्होंने हस्बैंड से कहा कि तुम इसे अकेले मत छोड़ना, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक इसके साथ ही रहना। मैं इस नेवले के साथ इसे नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. वो कही कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान ने कहा कि ये जो मंगूस हैं ये बहुत अच्छे फ्रेंडली एनिमल हैं, ये बहुत प्यारे हैं, जैसे हमारा बच्चा प्यारा है वैसे ये मंगूस भी बहुत प्यारे हैं। और तुम जैसा कि जानती ही हो कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, he decided to go out and took a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो उसकी जो बीवी थी वो चली गई और जो किसान था उसके पास घर में करने को कुछ काम नहीं था, तो वो भी अपने खेती में देखने चला गया। लेकिन फिर उसे अपने दोस्त मिल गए तो वो अपने दोस्तों से बहुत देर तक बातें करता रहा।
The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that the son's blood and the mongoose was the guilty one. जो फार्मर की वाइफ थी वो घर आ गई हाथ में सामान लेके, लेकिन उसको अपने दरवाजे पे दिखा कि वहाँ पे मंगूस के मुंह पे खून लगा हुआ है और उनके पैर पे भी खून लगा है. सी जम्प टू द कंक्लूजन, फिर उसे पता चला कि ये खून उसके बेटे का है. उसे लगा ऐसा कि ये खून उसके बेटे का है. एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन, और मंगूस की ही गलती है, मंगूस ने मेरे बेटे को मार दिया. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and the paws of the mongoose were smeared with blood. "You wicked animal, you have killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with the rage and with all her strength brought down the basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली और वो घर आई फुल ग्रॉसरीज को लेके. सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा कि जो मंगूस हैं, नेवले हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि वो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, वो फिर जो मंगूस थे वो फिर भाग के उसका स्वागत करने गए और फिर देखा. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम एज वाज कस्टमरी. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस, फिर जो फार्मर की जो वाइफ थी, मतलब जो वाइफ थी उसकी, वो उसने उसको देखा तो देखा कि उसके पाँव में और चेहरे पे बहुत सारा खून लगा है. फिर वो रोने लगी उसकी वाइफ. "You wicked animal, you have killed my baby!" she screamed hysterically. तुम विक्ड एनिमल, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे उसको क्यों मार डाला. "You killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with rage. वो बहुत वो हो गई, बहुत उसको दुख हुआ, उसको लगा कि उसके बेटे को उसने मार दिया है. एंड रैन टू द चाइल्ड्स क्रैडल, फिर चाइल्ड के क्रैडल पर भागते हुए गई. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, तो जो बेबी था वो सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, एक जो काला रंग के सांप था वो उसी पे पड़ा हुआ था, उसके पास से खून निकल रहा था. इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. सी रैन आउट लुकिंग for the mongoose. "Oh, you saved my child! You killed the snake! What have I done?" she cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. Farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead goose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. जो बेबी था वो सो रहा था और उसने देखा कि एक सांप पड़ा है ज़मीन पर जिसके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा है. फिर वो बाहर निकली मंगूस को देखने. "Oh, you saved my child!" उसने मंगूस से कहा. "You killed the snake. What have I done?" तुमने सांप को मार दिया और मैंने क्या किया. You see cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went to feed him. "Oh, तुमने मेरे बच्चों को बेटे को बचा लिया. You killed the snake. तुमने उस सांप को मार डाला. मैंने क्या कर डाला. She cried, touching the mongoose. फिर वो mongoose को छूते हुए कहती है कि ये मैंने क्या किया. Who lay dead and still unaware of her sobbing. अनअवेयर थे माने अवेयर नहीं थे उस सॉबिंग से रिलेटेड. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैशली एंड रैशली, जो वाइफ उनके खिलाफ बहुत अजीब सा बर्ताव करती थी, वो मरे हुए मंगूस को, नेवलों को देख रही थी और फिर उन्हें अपने बच्चे की अगर रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसके वो आंसू पोंछने चले गए और फिर उसने अपने बच्चे को खाना दिया. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.